Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23421050 and 23310464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको भी किया करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 23314444, 23421050 या फिर 23310464। आपके सवालों का जवाब देने और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन झा। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं Lalima Aneja Dang. Thank you, Manoj. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices end with gains. Sensex advances by over 300 points. Nifty settles at 25,574. Most Asian stock markets close in positive territory. And Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs first pre-budget consultation meeting. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 25,574 पर बंद हुआ। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में भी दिखी तेजी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पूर्व चर्चा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। Friends, before we move any further, here's an announcement for all of you. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब पहले सबसे घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआत से ही खरीदारी अच्छी रही और प्रमुख सूचकांक बढ़त में रहे। हालांकि कारोबार के अंतिम चरण में बिकवाली बढ़ जाने से शुरुआती पूरी बढ़त आखिर तक कायम नहीं रह सकी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए आज के दोनों प्रमुख सूचकांक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 319 अंक यानी 0.38% तेजी लेकर 83,535 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक यानी 0.32% लाभ के साथ 25,574 दर्ज हुआ। यदि छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां मिला जुला रुख था। एक और खरीदारी किए जाने से बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं बिकवाली के दबाव में स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% के आसपास नीचे आ गया। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, started the session with modest gains and moved higher through the day.
though in the last hour of trade, selling trimmed some of the early advances. The Sensex increased 319 points or 0.38% to close at 83,535, while the Nifty advanced 82 points or 0.32% to settle at 25,574. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index gained over 0.6% and the small-cap index dipped around 0.3%. In the Sensex pack, 18 out of 30 companies edged upward. Among the top gainers, Infosys surged 2.5%, HCL Tech added almost 1.9%, and Bajaj Finance increased nearly 1.8%. In the top laggards, Trent plunged 7.4% and Eternal dropped 1.5% and Power Grid fell almost 1.4%. सेंसेक्स पैक की सभी सेक्टर पर यदि ध्यान दें तो 13 में से 21 सेक्टर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक लाभ हुआ फोकस्ड आईटी सेक्टर में, जिसमें 1.7% की वृद्धि देखने को मिली। आईटी 1.6% बढ़त में रहा। टेक में 1.4% से अधिक की वृद्धि हुई। उधर घाटा उठाने वाले सेक्टर रहे यूटिलिटीज, जिसमें 0.4% का नुकसान हुआ। रियल्टी सेक्टर 0.3% के आसपास लुढ़क गया, जबकि यूटिलिटीज में 0.4% की गिरावट हुई। उधर सर्विसेज सेक्टर भी 0.2% नुकसान में रहा। यदि हम बाजार में विस्तार को देखें, किन कंपनियों को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो 2,372 कंपनियां आज घाटे के साथ बंद हुई, जबकि 1,962 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और 179 कंपनियां अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुई। रुपए पर नजर डालते हैं। हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, कई श्रोता जुड़ गए हैं। आप सबों का स्वागत, बने रहिए हमारे साथ। पहले हम आपको रुपए की जानकारी देते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 88 रुपए 69 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.63 पर चल रहा था। And friends, now we're joined by Amit Jha calling us from Delhi. जी अमित जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मैडम आपको मैं बहुत सुनता हूँ एफएम रेमो पे भी। अच्छा, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। रंजन सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि यूएस फंडिंग डील के बारे में आपके पास कोई जानकारी है सर? क्या प्रगति है वहाँ पे? धन्यवाद। जी नहीं, इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि भारत सरकार बहुत आशान्वित है कि ये डील जल्दी हो जाएगी, लेकिन आज की तारीख में कोई अगर पूर्वानुमान लगाना हो कि हाँ ये किस तारीख को हो रही है, तो ये बड़ा मुश्किल है। दरअसल पानी की लहरों से भी अधिक परिवर्तनशील रुख रहा है पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति की मनोदशाओं का। इस पल किस दिशा में जा रहे हैं, अगले पल कहां जा रहे हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। यही स्थिति हमारे दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। दोनों पक्ष बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, क्रमिक रूप से आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कब समझौता हो जाएगा, जब हो जाएगा हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। बहरहाल अमेरिका से आई खबर यह है कि वहां शटडाउन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, यानी जो अमेरिका में शटडाउन था वो अब खुल चुका है। बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, और बहुत से श्रोता शटडाउन को शायद नहीं समझते होंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएं कि अमेरिका में शटडाउन का क्या प्रोसेस रहा और अब जो बंद हुआ तो बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और खासकर से ये सोचो कि लगभग 40 दिन हो गए इसको, बहुत लंबा था। अभी तक का सबसे लंबा ये शटडाउन। भारत में तो ऐसी स्थिति की कल्पना करना ही मुश्किल है, और वहां पर स्थिति ये थी कि इस शटडाउन के चलते वहां सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन नहीं मिल रहे थे, सरकारी भुगतान सारे अटके हुए थे, रुके हुए थे। तो एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी कामकाज रुका हुआ था, यहाँ तक कि आर्थिक आंकड़े तक भी नहीं आ पा रहे थे। तो ये वाकई एक विकट स्थिति थी, और अमेरिका ही है जो ऐसी स्थिति को झेलता है और उससे आगे निकल जाता है, वरना दूसरे देशों में तो ऐसे स्थितियों पे कोहराम मच जाता है। मसला यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार को जो भी खर्चे चलाने होते हैं उसके लिए संसद की मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो जब पिछला जितना आपको मंजूरी मिली हुई थी वो मंजूरी जब पूरी हो गई, उसके आगे आपको नई मंजूरी लेनी होती है। तो ये प्रक्रिया हर साल की होती है, और अमेरिका में इस बार की मंजूरी अटकी हुई थी,
और वहाँ की राजनीतिक खींचतान में ये मसला रुका रहा। अब खुल गया है तो ठीक है, बाजार इससे थोड़ी राहत की सांस जरूर लेगा। यदि हम ये मान के चलें कि आज एशियाई बाजारों में भी तेजी दिखी है, घरेलू बाजार में भी तेजी रही है, तो ये शटडाउन का ही इम्पैक्ट रहा अमेरिका में, जो उसका असर रहा? शटडाउन तो 40 दिन से चल रहा था, बाजार हर दिन उसको लेकर के रोज रोना नहीं रो रहा था। तो ये रोजमर्रा की बाजार का अपना अपना उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि शटडाउन के चलते ही आज खुल जाएगा, इस उम्मीद में तेजी थी। वरना अमेरिकी बाजार तो वैसे भी शटडाउन चल रहा था और अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पे बने हुए थे जी। बीच में जरूर थोड़ा सा ऊपर से हल्के से नरम पड़े हैं, लेकिन मोटे तौर पे अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी बीच में बनी रही है हाल में। तो ऐसा नहीं है कि शटडाउन को लेकर के वहां बहुत हाय तौबा भी मची हुई थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका जैसा देश है जो गजब की चाल अपनी पचा पाया इसको। यदि दुनिया का सबसे सबल लोकतंत्र और वहां की चाल भी निराली अनूठी रहा करती है, और शटडाउन की प्रक्रिया मेरे ख्याल से अमेरिका ही इसको यानी चला रहा है अभी तक, जहां सरकार अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के घर भेज देती है। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार पर हम नजर डालेंगे। वहां आज खरीदारी की गई। प्रमुख सूचकांक अधिकांश बढ़त के साथ बंद हुए हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% से अधिक लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.3% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% से अधिक लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.1% लुढ़क गया। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक तेजी का रुख था। फ्रांस का कैक 40 1.3% लाभ में था। जर्मनी के डेक्स में 1.7% की वृद्धि दिख रही थी। उधर लंदन का FTSE 100 1% से ऊपर कारोबार कर रहा था। And friends, now we are joined by LP Kothari ji, who is calling us all the way from Kolkata. जी Kothari जी, please ask your question. मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम जब से समझ पड़ी है तब से मैं मार्केट मंत्र सुन रहा हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। और अब हमारा हमें पता नहीं किस चीज की सजा मिली है कि कोलकाता में पिछले 2 महीने से FM गोल्ड 101.1 में मार्केट मंत्र डिस्कंटिन्यू कर दिया। वो लोग प्रसारण नहीं कर रहे मार्केट मंत्र का। पर आप हमारे ऐप से तो सुन ही सकते हैं, अगर आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड सर मैं 75 साल का सीनियर सिटीजन हूँ, ये एप्स वगैरह मैं नहीं करता हूँ। तो अगर ये रेडियो में क्यों नहीं आता, ये क्या इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतनी बढ़िया जानकारी, और ये डिस्कंटिन्यू करके ये फालतू गाना बजा रहे 2 घंटे से। चलिए हम आपकी बात पहुंचा देंगे। मैडम प्लीज ये कीजिए। श्योर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। बाजार में हम आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, खासतौर से अपने यहाँ जो आज की तेजी रही उसके पीछे मुख्य कारक क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस समय भारतीय शेयर बाजार थोड़ा सा बाकी दुनिया से अलग चल रहा है जी। बाकी दुनिया में तेजी रहती है, हम थोड़े ठंडे रहते हैं, या दरअसल 2 धाराएं चल रही हैं अभी। एक तो ये कि FII पैसा निकाल रहे हैं, और उसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि ट्रेड डील को लेकर के सबको इंतजार है कि कब हो, अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील होनी है। दूसरा ये कि AI की थीम चल रही है। इस समय FII के सिर पे AI की थीम जो है वो छाई हुई है जी। तो उन्हें लगता है कि भारत में AI की स्टोरी नहीं है। हालांकि शायद अगले कुछ महीनों में वो इस पे गलत होने लग जाएंगे कि अमेरिका में शायद AI का बुलबुला फूट जाए और भारत में AI की कहानियां बनने लग जाएं। जी। लेकिन आज की तारीख में उन्हें लगता है कि AI की कहानी भारत में नहीं है, दूसरे देशों में है, तो वो पैसा उधर लगा रहे हैं। ये एक सोच बनी हुई है। इसके चलते हम लगातार FII आउटफ्लो देख रहे हैं जी। तो इसके चलते भारतीय बाजार बहुत आगे बढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा ये है कि जो हमारी अपनी ग्रोथ थी वो पिछले 2-3 तिमाहियों से थोड़ी हल्की चल रही थी, लेकिन इस बार ये जो अभी जुलाई से सितंबर की तिमाही निकली है, इसमें अब अंततः एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसी रही। तो मोटा मोटा जो अंदाजा था, जो विश्लेषकों के अनुमान थे, उनसे थोड़ी सी बेहतर ही आई है जी। जो इससे पहले थोड़ी कमतर आ रही थी, इस बार बेहतर आई है। तो ये एक अब धारणा बन रही है कि शायद बाजार अब जो एक अन्य मनस्कता है बाजार की, उससे उभरेगा और फिर आगे एक चाल पकड़ेगा। But Rajiv ji, we hear quite a few American companies doing layoffs of their staff. Is that too small a number, or is it not impacting the American markets? Again, that is linked with AI theme.
जहां भी उन्हें लगता है कि हम एआई को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे अमेजन का उसमें नाम हमने लिया, हमने जिक्र सुना कि अमेजन में छटनियां हुई और उसके पीछे एक रीजनिंग ये है कि एआई के जरिए वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे मिडिल लेयर्स में उन्हें ज़रूरत नहीं है लोगों की। तो ये कहानियां चल रही हैं। तो क्या इसके चलते अमेजन का शेयर जो है वो गिर गया? नहीं। इस समय जितने दुनिया में मार्केट कैप में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो ज़्यादातर आपको एआई वाली कहानियां चल रही हैं, उनके माध्यम से आ रही है, या जो टेक्नोलॉजी वाली हैं जिनमें कहीं आपको वही एआई का वापस पुट मिलता है कि अगर एनवीडिया को काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्यों मिल रही है, क्योंकि एआई के लिए उनके चिप्स की ज़रूरत है, उनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो हर जगह वो एआई की धूम मची हुई है। लेकिन उसके चलते क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा जो अमेरिकी बाजार है या पूरा विश्व बाजार है वो उसी तरह से चल रहा है? ये कुछ चुनिंदा कहानियां हैं जो पूरे मार्केट पर एक तरह से आवरण बनाकर बैठी हुई हैं, छाई हुई हैं। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया से पहले इस तरह की परामर्श बैठकें आयोजित करता है। बजट पूर्व बैठक अंतिम वार्षिक बजट तैयार करने और सदन में बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त अधिकारियों और वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित एक परामर्श और चर्चा प्रक्रिया है। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, जो आम बजट के लिए फरवरी में कह लें कि आना है, प्रस्तावित है, उससे पहले यह लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इनमें किन किन पक्षों को रखा जाता है और किस तरह आम नागरिक समझ पाए कि हमारा जो बजट तैयार होता है उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं? जी, ये जो अभी बैठकें शुरू हुई हैं, इसमें सबसे पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हुई। उसमें तमाम अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें होंगी। उसमें मजदूर संगठनों के साथ भी बैठकें होंगी, उद्योग संगठनों के साथ भी बैठकें होंगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोशिश की जाती है सरकार की ओर से कि सबका फीडबैक मिले और जो बजट बनाने की प्रक्रिया है उसमें सबकी भागीदारी आए सामने। अंततः जो भी करना है वो तो सरकार को ही करना है, वित्त मंत्रालय को बजट तैयार करना है। और इस बार मुझे लगता है कि उनके सामने एक थोड़ी अलग सी चुनौती ये है कि पिछले बजट में आपने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम कर दिया, बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद जीएसटी जैसा इतना बड़ा रिफॉर्म हो गया, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। जी। अगर आपको आगे भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां देखने को मिली, यानी मेरा इशारा है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत जल्दी नहीं होती है तो आपको और ज्यादा प्रोत्साहनों की जरूरत होगी। तो वो प्रोत्साहन कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर के बहुत आपको रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ट्रेड डील हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे जिससे जो निर्यात में हमें अगर थोड़ी बहुत कहीं चोट लग सकती है तो उसका विकल्प हम कैसे तलाशें। बहुत सारे काम सरकार पहले से कर रही है, जैसे जीएसटी रिडक्शन हुआ तो जीएसटी रिडक्शन है, बहुत सारी चीजें जो जीएसटी की प्रक्रिया से बाहर हैं कि आप वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान दें, अमेरिका नहीं तो किसी दूसरे देश पर ध्यान दें, आप यूरोप में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पे ध्यान दें, ब्राजील जैसे दूसरे देशों पे उनके साथ अपने सहयोग को बढ़ाएं, जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं वहां पर अपना फोकस बढ़ाएं। बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अब वही है कि बजट के अंदर और क्या हो सकता है, निर्यातकों को किस तरह के प्रोत्साहन और दिए जा सकते हैं, ये काफ़ी कुछ अभी मुझे लगता है कि इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया में ये सोच काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेगी। यहाँ पर यदि हम, राजीव जी आपने बड़ी अच्छी बात कही निर्यात की जो दिशाएं जा रही हैं और जिस तरह से अमेरिका के साथ या कह लें कि वैश्विक संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंध अपेक्षाकृत एक दूसरे के साथ परस्पर अधिक हितदायी माने जा रहे हैं, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया जा रहा है, तो भारत के लिए कहाँ आपको अवसर बनते दिख रहे हैं? अभी राष्ट्रपति 2 अफ्रीका के देशों की यात्रा पर है, अंगोला की और बोत्सवाना की। किस तरह से हम अपनी पैठ विश्व बाजार में नए क्षेत्र में बना सकते हैं? To add to Manoj ji, our commerce minister is in Australia for another deal. जी बिल्कुल, भारत सरकार
अब पूरे ग्लोब पे नज़र डाल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक जगह ही बहुत खास फोकस करके हम बैठे रहेंगे कि वहाँ काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बड़ा झटका लग गया। अब ईयू के साथ काफ़ी आगे बात चल रही है, यूके के साथ ट्रेड डील हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, वहाँ पर अभी हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोब का कोई भी हिस्सा छोड़ा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हम अमेरिका को भूल जाने वाले हैं। कोशिश वहाँ भी चलती रहेगी। हो सकता है हमें कोई अच्छी खबर अगले हफ्ते मिल जाए, हो सकता है कि अभी 1-2 महीने और लग जाएं, हो सकता है कुछ और समय लगे। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी इच्छा नहीं है, उसमें दूसरा पक्ष भी जो है वो कितना तैयार है। हमने अपनी कुछ पोजीशंस क्लियर करके रख दी हैं, उन पोजीशंस पर अब सामने दूसरे पक्ष को अपना मन बनाना है। Right. And that's the wisest thing to do probably at the moment. Yeah. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां संघ और शहरी संगठनों को नैतिक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, जिनके आधार पर प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप प्रदान करे। श्री शाह ने कहा कि इसका उद्देश्य सहकारिता को मजबूत करने के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। श्री शाह ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि इससे एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो 2047 तक सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स के लिए आदर्श उपनियम बनाए हैं और इन्हें हर राज्य ने अपनाया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि सहकारी क्षेत्र ने यानी कह लें कि देश के कई भूभागों में बड़े बदलाव किए। हम यदि श्वेत क्रांति की बात करें तो अमूल का उदाहरण सबसे सामने आता है, और अब जो कह लें नया एक विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की ही स्थापना हुई है सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए। किस दिशा में जाता देख रहे हैं आपसी सहयोग से उद्यम के एक नए अवसर को बनते हुए देखकर आप, विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर? देखिए, जब आप एक बहुत बड़ी आबादी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और वो इस तरह से कि वो आबादी उस किसी संगठन के साथ, किसी संस्था के साथ अपना एक जुड़ाव महसूस करे। मान लीजिए कॉर्पोरेट क्षेत्र कहीं पर जाता है, काम करता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन उसके बदले अगर एक सहकारी संगठन वही काम कर रहा होता है तो उसके साथ लोग बहुत अपनापन महसूस करने लगते हैं। जो हमने गुजरात में जो पूरा सहकारिता आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ा, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर लोगों को एक अपनापन महसूस होता है। तो सहकारिता एक बहुत अच्छा मॉडल है और बीच में मुझे लगता है कि इसकी गति थोड़ी सी कहीं पर हल्की पड़ी होगी, लेकिन इसको जितना आगे बढ़ाया जाए वो बेहतर है। इसमें हर किसी को स्टेक होल्डर बनने का एक तरह से मौका मिल जाता है। And we've just recently, in the last few days, we had the news that Amul and IFFCO were among the top 2 cooperatives of the world, and that also gives us a kind और of कितने पेशेवर तरीके से चल रहे हैं वो भी देखिए जी। और and the government is doing its best to streamline it and tighten the loose ends, right? All right, let's move on. Well, India's unemployment rate declined to 5.2% in the second quarter of this year, down from 5.4% in the first quarter this year for individuals aged 15 years and above. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, monthly labor force and unemployment data, the overall unemployment rate for rural people was at 4.4%, while the urban people rate stood at 6.9% during July to September quarter this year. The female participation in the labor force witnessed an increase to
to 33.7% in second quarter, up from 33.4% in first quarter this year. Meanwhile, labor force participation rate, LFPR as we call it, which is an estimate of the number of people actively engaged in workforce in current weekly status among persons of age 15 years and above, increased marginally to 55.1%, up from 55% during April to June quarter this year. यानी बेरोजगारी के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है, लोगों को रोजगार अधिक मिल रहा है. क्या कह रही है आंकड़े? जी, इसमें जैसे एक अच्छी बात यह है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ी है, 33.4 से 33.7% हुई है. लेकिन मैं तो ये महसूस करूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये अभी भी काफी कम है, इसे और बढ़ना चाहिए आगे. क्रमशः हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है. All right, the GST Bachat Utsav, well, we've had these stories running in our bulletins. The GST Bachat Utsav started on the 22nd of September of this year with the reduction of goods and services tax on many items, benefiting citizens across the country. Our correspondent brings a report on how the next generation GST reforms are boosting the economy of Ladakh. Here's a report. Under the next generation GST reforms, the government has provided a significant relief to artisans, farmers and small enterprises in Ladakh. GST on Pashmina wool, Namda rugs and other handloom products has been reduced from 12% to 5%. The move has eased production cost and boosted the revival of traditional crafts, strengthening the livelihoods of local herders and artisans. Similarly, the tax on apricot and sea buckthorn products have also benefited thousands of farming families, supporting women-led groups and promoting organic farming. Along with this, the taxes on hotel rooms priced up to 7,500 rupees have also been reduced from 12% to 5%, making travel and accommodation more affordable during the tourist season and supporting the growth of ecotourism and local homestays. The GST reforms have not only safeguarded Ladakh's heritage but also boosted its sustainable industries and expanded markets for local products. With Soumya, Shivang Mishra for Akashvani News, Delhi. And moving on to oil now. Global crude oil prices steady on Monday as investors assessed a potential end to the US government shutdown and concerns around oversupply in the crude market. Brent crude was trading around 0.2% up at $63.72 per barrel, and WTI crude was also trading 0.1% up at $59.81 per barrel when reports last came in. And a look at the metal prices, the metal which India loves, yes, gold. In the Indian bullion market, the 24-carat gold price was trading around 1.9% up at 1,23,740 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% up at 1,52,880 rupees per kilogram. आइए आपको लिए चलें MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. वहां दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 1.9% बढ़त के साथ 1,23,335 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था. उधर दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 3.2% से अधिक बढ़कर 1,52,496 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. हमारे साथ दिल्ली से श्रोता हैं योगेश जी. कार्यक्रम में आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपको अपने इस अंक में तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास बस कुछ सेकंड्स बच रहे हैं. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद. अगली बार थोड़ा पहले सवाल पूछिएगा. बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी आपकी. सोने के दाम और बढ़ने के आसार हैं या नीचे आने के? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी. देखिए, सोना बहुत ही वोलेटाइल प्रोडक्ट है, यह वोलेटाइल कमोडिटी है. जिस समय काफी ऊंचे भाव दिख रहे थे उस समय कई लोग पूछते थे क्या और खरीद लें, और उस समय मैंने कहा था कि अगर आप उतार चढ़ाव झेल सकते हैं तो फिर आप हिम्मत कीजिए. अभी भी वही स्थिति. आज अब देखिए कि 1.70 से 1.50 के आसपास आ गया, 1.40 से 1.23 के आसपास. यानी जोखिम ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा है. बहुत श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Rajiv ji, for being here. Well, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains. Sensex advances by over 300 points. Nifty settles at 25,574. Most Asian stock markets close in positive territory, and Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs first pre-budget consultation meeting. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. So it's Namaskar from all of us here.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। मार्केट मंत्रा